Hello friends, welcome to Exambee. Your CPO exam is going to be held on 23rd of Jan, and banking awareness is one of the important pillar of your CBO exam. ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस जो है जनवरी और दिसंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आईबीपीएस का एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट करंट मंथ से और लास्ट मंथ से पूछे जाते हैं. ठीक है, so in this video we are going to discuss the important banking awareness questions in the form of MCQs. ठीक है, this is going to be helpful for your CBO. Starting with the first question, in Jan 2022, STPI Next, this is the one IT company based in Bangalore, signed an MOU with HDFC Bank for which of the following purpose? इसका पर्पस, MOU का पर्पस था to strengthen the tech startup ecosystem in India. Second question is about the RBI has decided to set up new department for fintech, और इसके HOD कौन होंगे? HOD होंगे अजय कुमार चौधरी. अजय कुमार चौधरी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई में, ईडी. ओके, then third question is RBL Bank is aiming at improving the customer experience through digital platform called Abacus 2.0. ये Abacus भी important है. 1 RBL Bank, 2 and the third the collaborating entity is your Google. ठीक है, Google की parent organization है Alphabet INC. Alphabet INC. ठीक है, so you should remember this. In Jan 2022, Edelweiss Finance and ECL Finance have signed a co-lending agreement with which of the following bank? This co-lending agreement has been signed with Indian Bank. ठीक है, चेन्नई बेस्ड बैंक है ये इंडियन बैंक. इसके एमडी एंड सीईओ रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, नाम है शांतिलाल जैन. ठीक है, शांतिलाल जैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Urjit Patel. Urjit Patel recently has been appointed as Vice President of AIIB. AIIB आपका बीजिंग बेस्ड बैंक है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है AIIB का. दूसरा एनडीबी होता है, एनडीबी ही आपका शंघाई में है. ठीक है, तो AIIB का करेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? उसमें चाइना, इंडिया, रशिया ये सारे लोग हैं. तो करेक्ट शेयर होल्डिंग का पैटर्न है आपका फर्स्ट चाइना, देन इंडिया एंड थर्ड रशिया. ठीक है, देन NRLM इज लाइक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. इट कम्स अंडर द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. सो दे आर वर्किंग फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएशन फॉर रूरल पॉपुलेशन. सो फॉर creating livelihood opportunities and creating opportunities for marketing of the products of people who are living in rural India, NRLM has tied up with e-commerce giant. You need to identify this e-commerce giant. It is no one but the Flipkart. ठीक है, then SOA Capital. SOA Capital is UK based firm, UK based company है. So SOA Capital has collaborated with INX, India INX to access the European market or Russian market or American market. Okay, the correct answer is Russian market. Remember this very important question. This may come in your CBO. The Reserve Bank of India has joined the Central Banks and Supervisors Network known as NGFS. ठीक है, you need to identify the NGFS. What is NGFS? NGFS is for Network of Green Financing Services. ठीक है, the correct answer is to finance renewable and green infrastructure. The purpose of NGFS is to finance renewable and green infrastructure. Next is recently which of the following has got license from IRDA to sell insurance products on its platform? Correct answer for this question is your PhonePe. ठीक है, PhonePe has been also given license by RBI to act as account aggregator. Account aggregator. ठीक है, तो ये दोनों लाइसेंस इसको मिले हैं PhonePe को. आगे बढ़ते हैं. SLDE was recently in news which is a government backed blockchain enabled platform for compliance of logistic document.
ये लॉजिस्टिक के डॉक्यूमेंट, मतलब पोर्ट पे मानो या फिर किसी बड़े सिटी में कह लो, वहां पे ये जो लॉजिस्टिक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट हो या और कोई डॉक्यूमेंट हो, तो ये इसके अप्रूवल में, रेगुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है ना. So that's why Commerce Ministry has come up with blockchain enabled platform and that is called as Secured Logistic Document Exchange. ठीक है, इससे जो हमारा लॉजिस्टिक का टाइम होगा, है ना, वो कम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Jan 2022 which of the following bank has launched instant loan for MSMEs? Scheme for instant loan for MSMEs. The correct answer for this question is Federal Bank. Again, Federal Bank is Kerala based bank. Kerala based bank, इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, कोची में आता है. ठीक है. Coming up next, which of the following organization has partnered with Earth Impact Digital Loans to support self-help groups? Now, if you look at the options, you may think that all the options are related with self-help groups. Then how to pick the correct answer? The correct answer is your NABARD. ठीक है, NABARD के इंटरव्यू भी ड्यू है, उसमें भी ये पूछ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. How many payment banks are included in second schedule of RBI Act 1935? Second schedule of RBI Act 1935. These are the 4 payment banks. ठीक है. Which are those 4 payment banks? One is your India Post Payment Bank. Second is your Fino Payment Bank. Third one is Paytm. And fourth one is Airtel Payment Bank. ठीक है. Airtel Payment Bank. In Jan 2022, World Bank has forecasted that India will grow at the rate of 8.3% in 2023. ठीक है. वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. देन इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. इसके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको, चेयरमैन नहीं बोलते या एमडी नहीं बोलते. जैसे आईएमएफ में क्या होता है, एमडी होता है. आईएमएफ के एमडी का नाम क्या है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा. ठीक है. और फर्स्ट फीमेल कौन है, फर्स्ट फीमेल एमडी ऑफ आईएमएफ इज और गीता गोपीनाथ. और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, डेविड मालपास. ओके. So the next is, as per the Global Private Banking Award 2021, which has been held in January 2022, which of the following has been identified as the best bank in India? The best bank in India cannot be your public sector bank, है ना, because public sector bank is catering to lots of people and they also need to deal with the government schemes, lot of NPAs and all, है ना. तो गवर्नेंस के हिसाब से और एनपीएस के हिसाब से प्राइवेट बैंक ही आपका बेस्ट बैंक होना चाहिए. तो ऑप्शन भी उसी तरह से है. तो एचडीएफसी बैंक हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द 16th इंडिया डिजिटल समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 16th इंडिया डिजिटल समिट, कॉमर्स मिनिस्टर Mr. Piyush Goyal has unveiled the LEAP for startups. Identify the long form of this LEAP. First of all, let me tell you, ये जो इंडिया डिजिटल समिट है, ये आपका ऑर्गेनाइज किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री. और थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स. ठीक है. सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, वेरी इंपॉर्टेंट. और एलईएपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लेवरेज एनहांस, ये है लेवरेज एनहांस एक्सेस और प्रोमोट. लेवरेज एनकरेज एक्सेस एंड प्रोमोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं. विच कंपनी रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड फॉर कार्ड टोकनाइजेशन टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर्स, है ना.
So SBI has partnered with the Paytm Payment Bank. Recently they have launched their IPO also. Founder is Vijay Shekhar Sharma. ये 51% के मालिक हैं. एंड देन 197 आई थिंक 197 कम्युनिकेशन ऐसा कुछ कंपनी का नाम है, इसकी पेरेंट कंपनी का, है ना. उनका 49% स्टेक है. ठीक है. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन December 2021 announced to acquire around 10% stake in India International Clearing Corporation? Very, very important again. So the State Bank of India is going to acquire the 10% stake in India International Clearing Corporation. Next question is, RBI has recently extended the deadline for tokenization. है ना, टोकनाइजेशन का डेडलाइन 6 months से पोस्टपोन किया था, एंड द डेट इज योर June 30th, 2022. ओके. नेक्स्ट इज, इन Jan 2022 RBI हैज रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन ombudsman स्कीम. तो ये ombudsman स्कीम के जो रिपोर्ट है ना, कितने ombudsmen हैं टोटल पूरे कंट्री में? 22. ठीक है. इट इज फाउंड दैट कंप्लेंट्स इंक्रीज बाय 21.27%. Next question is, in Jan 2022, which of the fund has been renamed as White Oak Capital Mutual Fund? White Oak Capital Mutual Fund. This is your Yes Mutual Fund. ठीक है. क्योंकि यह देखो, लॉजिकल तो यही बनता है कि यस बैंक में एक क्राइसिस चल रहा है ना, उसको कोई एक्वायर करेगा, उसका नाम चेंज करेगा, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेगा, बिकॉज दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है. इन Jan 2022, NPCI भारत बिल पेमेंट सिस्टम हैज लॉन्च्ड यूपीएमएस टू सिंप्लीफाई रिकरिंग बिल. तो इसमें का P क्या है आपको बताना है. व्हाट इज P? यूपीएमएस इज नथिंग बट यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस हिसाब से P क्या हुआ आपका? प्रेजेंटमेंट. ठीक है. इस मैकेनिज्म के थ्रू आपके जितने भी डिजिटल चैनल्स होंगे आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, सब पे आपको नोटिफिकेशन आएगा टू पे योर रिकरिंग बिल्स. ठीक है. एक्साइड इंडस्ट्रीज हैज सोल्ड इट्स इंश्योरेंस बिजनेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? एक्साइड इंडस्ट्री का जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो किसने खरीद लिया? वो खरीदा है आपके HDFC लाइफ ने. HDFC लाइफ ये एक इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है. तो एक्साइड इंडस्ट्री का जो धंधा था इंश्योरेंस का वो बैठ गया, उन्होंने वो बेच दिया किसको? HDFC को. ध्यान में रखें. विथ रिस्पेक्ट टू दी 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? RBI. ये पूछ लिया था नाबार्ड 2021 प्रीलिम्स में. ठीक है. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ग्रॉस नेशनल NPA, ठीक है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट were increased from 6.9% in September 2021 to how much percent? It is 8.1% of total asset by September 2022. एक साल में 6.9 था, अभी कितना हो गया? 8.1%. ठीक है. ग्रॉस NPA ध्यान में रहे. Identify the financial organization which has topped the digital payment scorecard launched by MeitY. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड लॉन्च किया. उसमें किस बैंक ने टॉप किया? उसने टॉप किया बैंक ऑफ बड़ौदा. हेडक्वार्टर है इसका कहां पे है? गुजरात. गुजरात में भी आपका वडोदरा है ना, नाम ही है बड़ौदा. बड़ौदा मतलब ही वडोदरा है. ठीक है. देन इन Jan 2022 S मल्लिकार्जुन राव, ये फॉर्मर MD एंड CEO थे पंजाब नेशनल बैंक के, और इनको अभी रिप्लेस कौन कर रहे हैं? मिस्टर AK गोयल. AK गोयल पहले यूको बैंक के MD एंड CEO थे, अभी ये PNB को हेड करेंगे. ठीक है. मिस्टर AK गोयल. विवेक जौहरी, ये IRS ऑफिसर है और ये CBIC के चेयरमैन है, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट
कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। अलका उपाध्याय एनएचएआई के चेयरमैन, एमडी पात्रा आपके डिप्टी गवर्नर है आरबीआई और एमपीसी के मेंबर भी है। देन मिस्टर रजनीश कुमार ये आपके भारत पे के चेयरमैन है ना, भारत पे के चेयरमैन है, ठीक है। Then in Jan 2022, RBI granted $900 million of forex loan, $900 million loan to manage forex crisis of which of the following nation? कहाँ पे हुआ है ये क्राइसिस? ये क्राइसिस हुआ है आपके श्रीलंका में, और श्रीलंका को हमने लोन दिया है 900 मिलियन का, ठीक है। इंडिफी has tied up with which of the following platform to provide instant credit to small merchant? पहले MSME था, अभी क्या है स्मॉल मर्चेंट, और इंडिफी है अभी, ठीक है। इंडिफी और किसने टाइप किया है? टाइप किया है गूगल पे ने, टू गिव द क्रेडिट टू स्मॉल मर्चेंट्स। देन रिसेंटली आरबीआई हैज गिवन लाइसेंसेस टू ऑपरेट एज अकाउंट एग्रीगेटर। किसको लाइसेंस दिया है टू ऑपरेट एज अकाउंट एग्रीगेटर? लाइसेंस मिला है फोन पे को रिसेंटली, हाँ अभी हमने डिस्कस भी किया था पिछले क्वेश्चन में, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इसको आईआरडीए ने भी लाइसेंस दिया है, आईआरडीए ने लाइसेंस दिया है टू ऑपरेट एज इंश्योरेंस प्रोवाइडर, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा आपका? जो लॉन्ग टर्म असेट क्रिएट करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन योर रूरल डेवलपमेंट, है ना, लॉन्ग टर्म असेट है, so that's why this comes in under your capital asset. Next is in December 2021 RBI extended the deadline for know your customer, ठीक है, updation in the bank accounts till your 31st of March 2022, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, ठीक है, ये ऐसा ध्यान में रखना। फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 21-22 ये खत्म होने तक डेडलाइन को एक्सटेंड किया है। फॉर व्हाट? नो योर कस्टमर। इसके पहले हमने कौन सा डेडलाइन देखा था? टोकनाइजेशन का, ठीक है। टोकनाइजेशन कितने मंथ से एक्सटेंड हुआ है? 6 मंथ्स, और कब तक? 30th जून 2022। देन name the bank that was recently in December 2021 launched the green fixed deposit. Very important because this is related with environment, sustainable development, है ना। ग्रीन फाइनेंसिंग, है ना। तो ये ग्रीन फिक्स डिपॉजिट किसने ओपन किया है? ये है आपका इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक, ध्यान में रहे, इंडसइंड बैंक। The government of Karnataka recently partnered with NPCI and which of the following bank to implement the e-rupee for payment of scholarship देने के लिए e-rupee का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। पर्सन बेस्ड एंड पर्पस एंड पर्पस बेस्ड पेमेंट सिस्टम किसको कहते हैं? पेमेंट सिस्टम किसको कहते हैं? ई-रूपी को, ठीक है। कौन सा बैंक है जिसके साथ हमने टाई अप किया है? कैनरा बैंक नहीं है, क्योंकि कैनरा बैंक का आपका साउथ इंडिया का है कैनरा बैंक, ठीक है, बट फिर भी कैनरा बैंक के साथ नहीं किया है। टाई अप किसके साथ किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के साथ, ठीक है। एसबीआई, एनपीसीआई और कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है, स्कॉलरशिप देंगे बच्चों। व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रीजनल रूरल बैंक? अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है। रीजनल रूरल बैंक, उसमें 3 पार्टनर होते हैं, सेंटर, स्टेट और होती है एक स्पॉन्सर्ड बैंक। सेंटर का कितना है? 50%, स्टेट का कितना है? 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना है? 35%, ठीक है।
Then in December 2021, which country became the 4th new member of New Development Bank? New Development Bank मतलब क्या? आपका ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसको. न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ब्रिक्स बैंक. हेडक्वार्टर है शंघाई. ठीक है, हेडक्वार्टर है शंघाई. एंड विच इज द कंट्री, न्यूली एडेड कंट्री? इट इज इजिप्ट. ठीक है, इजिप्ट. यहाँ पे हमने दिसंबर और जनवरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर सीबीओ एग्जाम. आई होप यू ऑल लाइक द सेशन. If you like the session and question of the quality of the question, you please like the session and subscribe the channel. Wish you all the best for your exam. Thank you.